You were in Bangladesh recently, and I was seeing a lot of posts on LinkedIn around that as well. Tell me about your experience there. Bangladesh is really opening up since uh, the change of government there, as well Mm-hmm. as the recent war that Pakistan had. So there's a change in the neighborhood. There's a lot of geopolitical changes as well. But the one good upside to all of that has been that Bangladesh ke saath, there's a lot of government to government as well as private sector engagement that is beginning to now happen. And it's very interesting because a country that was part of us, or we were a part of them at one point in time, uh, we've been completely disconnected from them over the last 50 years. And it's only very recently that we're now beginning to interact and connect again. There's a language barrier there. Obviously, they're far away. Language was one of the reasons why they were upset in the first place. So I'm not sure कि उसमें communication का भी potential issue या element आ सकता है. I also understand that there have been a lot of Pakistanis even in recent history that have been there. Pakistan की जब textile sector जो है थोड़ा सा hit हुआ था war on terror और load shedding के time के ऊपर, तो a lot of the sort of middle management Pakistani actually sort of moved to Bangladesh, and they were managing the factories there and helping in the growth that Bangladesh eventually saw. What was your experience there? Is there potential opportunity for collaboration? Is there potential opportunity for expansion? Why were you there in the first place? What would your net learning outcomes be from that visit? It was one of the probably most memorable visits of my life because I did not go in with the expectations that I came out with. एंड जब मैं वहाँ पे गया हूँ, ढाका वाज द प्लेस आई विजिटेड. वहाँ पे मैंने सुना क्या जो सबसे उसका पॉश एरिया है, सबसे ज़बरदस्त एरिया है, गुलशन उस एरिया का नाम है. एंड देयर इज लॉट ऑफ 5 स्टार होटल्स देयर. सो मेरे माइंड के अंदर था कि नहीं यार, डेवलपमेंट वाइज कराची से आगे ही होगा. आई स्पोक टू अ फ्रेंड, ही वाज लाइक नो, यू प्रॉब्ली फाइंड कराची अ लिटिल बेटर डेवलप्ड. जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो आई कुड at certain points feel that मैं ऐसा लग रहा है कराची में ही हूँ. But in fact, in terms of infrastructure, in terms of development, I did see that maybe Karachi was also sometimes a little ahead in certain parts of the place. I did not know what LDC meant until I went there. मुझे पता था कि हम developing country हैं. Maybe Bangladesh is also a developing country. It is. But there's a list of countries like LDC, least developed countries, which I think is about the infrastructure rather than the people itself. So I think it is coming out of LDC list next year. So I saw a lot of construction happening. I saw a lot of work being done. But as of now, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो I was like, अच्छा 5 स्टार होटल तो है, but the experience that I had imagined, it might not be there. However, when I met the people, it really humbled me. Because जैसा आपने कहा 50 साल से डिस्टेंस नहीं है. To be honest, the distance has been इन द लास्ट गवर्नमेंट, जो वहाँ की लास्ट गवर्नमेंट थी, उससे पहले पाकिस्तानियों ने जाके वहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स भी सेटअप किए हैं. यस, यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट ने भी जाके वहाँ का काम किया. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रॉस कोलैबोरेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, राइट? सो right now the reception, they really welcomed, जिससे मैंने बात की, the people are progressive. There's a very positive mindset amongst the people as well. हम यहाँ पे काफ़ी मतलब जब लोगों से मिल रहे होते हैं तो we are always complaining कि यार ये नहीं खराब, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा. So although it might be an LDC at this particular point, but in terms of mindset, everybody is trying to figure things out. So I believe that country has done amazing work in textile, जो उसकी क्वालिटी, जिस तरीके का काम वो कर रहे हैं. But at the same time, because उनकी textile इतनी ज़्यादा grow होती गई in the last couple of decades, that all the additional money that kept coming in kept going into textile itself as well. Whereas in Pakistan, maybe alternative industries and parallel industries भी साथ साथ develop होती गई. Most of the people are in Dhaka, जो उसकी working class है, around 70% GDP comes out of there. However, in terms of language barrier as well, मुझे कहीं पे language barrier इतना ज़्यादा feel नहीं हुआ. इनफैक्ट मैंने वहाँ पे कोई open mic poetry night ढूंढ ली. I was there for 3-4 nights, so I ended up going there. वहाँ पे जब मैं गया तो सब बंगाली के अंदर poetry कर रहे थे. A couple of people were doing it in English. And I also, said कि मैंने भी कुछ बात करनी है, मैंने भी कुछ बोलना है. And I wrote something for my mother, because my mother was born in खुलना, Bangladesh, and she had made me promise कि यार जब भी तुम बांग्लादेश जाओ तो मुझे लेके जाना. So I did the whole poetry in Urdu, and the reception that it received, जिस तरीके से लोगों ने
मतलब अप्रिशिएट किया जस्ट द फैक्ट दैट दिस कराची का गाय इज हियर एंड अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी. इट वाज सो वेलकमिंग. वो रात को मुझे कॉल करके 1:30 बजे वापस आया कि यार हम तुम्हें चाय पिलाने लेके जाएंगे. मैं बोला नहीं यार, आई हैव टू स्लीप. बोला नहीं, आधा घंटा तो आप आओ, और फिर 1-1.5 घंटा. एंड सच अमेजिंग पीपल दैट आई मेट. सो इन टर्म्स ऑफ वर्क आई डू सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर, बिकॉज वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स की कमी किल्लत एग्जिस्ट कर रही है. वहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स दैट एग्जिस्ट इज आरोंग, विच माइट ऑल्सो, आई थिंक वो भी नॉन प्रॉफिट बन गया है. Really good brand, but Arong के बाद if you have to name the second brand in terms of textiles, there is no other brand. And Western brands cannot work there because वो दुनिया का some of the best Western textile manufacture कर रहे हैं, और वहाँ पे I believe there is a lot of these stores जो कि आपको leftovers उसके sell कर रहे हैं. So जो Western brands मैंने देखे भी exist कर रहे हैं, तो Adidas है, अगर उसकी 7,000 टका जो कि पाकिस्तानी 14,000-14,500 रुपये 15,000 रुपये उसके बनते हैं, अगर 7,000 टके की एक टी शर्ट एडिडास की वहाँ पे मिल रही है, तो बराबर के अंदर कोई और ब्रांड की प्रॉपर लेफ्ट ओवर वाली 2,500-3,000 के अंदर मिल रही है. सो वहाँ पे वैल्यू क्रिएशन उस तरीके से आई एम नॉट श्योर लोकल ब्रांड की कितनी हो सकती है वेस्टर्न के अंदर, अनलेस इट्स अ वेरी आइडेंटिटी ड्रिवन ब्रांड. समवन कम्स एंड डज वर्क लाइक नक्श और रास्ता, तो वो एक वेस्टर्न एलिमेंट के अंदर आई बिलीव काम हो सकता है. However, in terms of Eastern, एक आरोंग है, और आरोंग का भी जो मैंने काफ़ी लाइन्स देखी, it became Pakistani inspired, and there was a lot of replica of Lawn, a lot of replica of Pakistani brands. In fact, हर दूसरे उसके अंदर गली के अंदर कोई ना कोई स्टोर है जो कि पाकिस्तानी रीसेल हो रहा है, जहाँ पे गुल अहमद भी है, सफ़ायर भी है, मारिया बी भी है. इनफैक्ट अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो मारिया बी हैज़ जस्ट साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो जो है फाइनली दे विल बी ओपनिंग अ फ्लैगशिप स्टोर. जे डॉट का वहाँ पे अपना एक स्टोर एग्जिस्ट कर रहा है. और जब मैं वहाँ पे वेस्टर्न और इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानों में गया, जहाँ पे लीवाई हो गया, एडिडास हो गया, पूमा हो गया, आई कुड नॉट सी एज मैनी कस्टमर्स एज आई डिड इन द स्टोर्स जहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड्स बिक रहे थे. बट ऑल्सो दो स्टोर्स वर नॉट मेड इन सच अ फैंसी वे, कोई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस नहीं था. इट्स जस्ट द एक्सेसिबिलिटी दैट डिड एग्जिस्ट देयर. नाउ व्हाई सो? नंबर वन, पाकिस्तानी आर्ट इज़ रियली अप्रिशिएटेड देयर. So our poetry, our dramas, our music are really heard. And then, and when it comes down to fashion, the culture of media really has a lot of influence on that. So I do believe that क्योंकि वहाँ पे अभी Bangladesh is in a place where Pakistan's retail industry was at certain particular point, right? आज भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व नहीं हुई. 25% हम ऑर्गेनाइज के अंदर चल रहे हैं, बट कंपेयर टू बांग्लादेश वी आर स्टिल मच मोर ऑर्गेनाइज्ड देन दैट पर्टिकुलर प्लेस. वहाँ पे आई रियलाइज देयर इज दिस बिग न्यू शॉपिंग मॉल दैट हैज बीन मेड, लेकिन देयर इज नॉट राइट सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स टू फिल द स्पेस. सो आई डू बिलीव कि अगर पाकिस्तानी ब्रांड जाके नॉट जस्ट ओपनिंग अ शॉप बट एक्चुअली बिल्डिंग अ ब्रांड वहाँ पे अगर वो करते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो सेट द राइट सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क फॉर द लोकल ब्रांड्स. ताकि कंपटीशन जब बढ़ेगा तो लोकल प्लेयर्स भी आएंगे, एंड इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन, एंड आई बिलीव द मार्केट इटसेल्फ विल इवॉल्व. बट इट्स नॉट जस्ट इन टेक्सटाइल ओनली. आई बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स. फूड इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हैं. पाकिस्तान के अंदर हमने देखा इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स व्हेन इट कम्स डाउन टू फूड इन कराची और इन लाहौर, we have really grown in terms of the taste, in terms of the variety of different sort of. आपको यहाँ पे राशिद बंगाली से मिलके लेके एक पेशावरी कढ़ाई से लेके आपको बिल्कुल हाई एंड अमेजिंग मिशेलिन स्टार लेवल cuisine भी मिल रहा होगा. So I believe there's a lot of opportunity in the food area. There's a lot of opportunity in skincare. In fact, there's a lot of opportunity in fragrance. पाकिस्तान की जो fragrance industry है वो जो लास्ट 5-8 साल के अंदर ग्रो की है एक्सपोनेंशियली, इट इज़ अ ग्लोबल केस स्टडी. बट एट द सेम टाइम वहाँ पे आज तक अगर कोई ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फ्रेगरेंस के अंदर, सो दोज आर जस्ट दोज इम्पोर्टेड ब्रांड्स. So there is a lot of space, there is a lot of scope. Governments are really working together to find out the right possible way. I hope that there is a direct flight soon as well. वीज़ा अभी बहुत मुश्किल नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट सुपर ईजी. इट विल बिकम अ लिटिल मोर ईजियर जब ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन जो हैं इसकी अवेलेबल हो जाएंगी. बट वंस अभी जो मैं ट्रैवल किया, सो इट टुक मी अराउंड 10 to 12 आवर्स गोइंग इन एमिरेट्स, बिकॉज यू हैव टू गो द अदर वे, और फिर आप ऑल द वे जा रहे हैं. आप थाई एयर लेते हैं जिसमें आप पहले थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं बांग्लादेश, एंड देन यू कम बैक टू बांग्लादेश. वेयर एज अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो जाती है, सो लाहौर से अराउंड 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट होगी, कराची से 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट. सो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मोर अपॉर्चुनिटी. जिससे मैंने बात की कंज्यूमर
how's the consumer class there? So raw number तो आपके नज़र आता है कि यार GDP पर कैपिटा उनका 2400-2500 है, पाकिस्तान का 1800-2000 है. अगेन इसके ऊपर जो हमारी वो इंडियन ऑडियंस है वो आके कहती है कि नहीं 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 1400 है 1300 है. देयर इज़ अ डेटा लैग फॉर पाकिस्तान, बट जो गवर्नमेंट का रिसेंट रिलीज डेटा है दैट बेसिकली सेज कि लास्ट अवेलेबल हमारा जो GDP पर कैपिटा है इट्स अराउंड 1800, बांग्लादेश बीइंग 2500 एंड इंडिया बीइंग आई थिंक 2600. बांग्लादेश का थोड़ा सा वो लैग किया था. रॉ नंबर पे तो ये लगता है कि ज़ाहिर है दे हैव अ लॉट मोर डिस्पोजेबल इनकम दैन पाकिस्तान, बट ऑब्वियसली कॉस्ट्स आर डिफरेंट इन ईच कंट्री. देर लैंड स्कार्स कंट्री, वहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे उनकी कॉस्ट ऑफ हाउसिंग और वो चीज़ें सारी मिला मिलू के तो वो क्या उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि पॉपुलेशन तो है बट क्या कंज्यूमर क्लास भी है जिसको टैप इन किया जा सकता है? सो पॉपुलेशन इज सिमिलर अराउंड, जो आपका तकरीबन 18-20 करोड़ लोग होंगे पाकिस्तान के अंदर. जब हम बात करते हैं 24-25 करोड़ की बात करते हैं, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया था मोस्टली लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं ढाका के अंदर जहाँ पे वर्किंग क्लास एग्जिस्ट कर रही है. और इट इज़ पॉसिबल कि शायद कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो, बट जिस तरीके की मार्केट को जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर टारगेट कर रहा होता है वो आज भी पाकिस्तान के अंदर कम्प्लीटली उसको फुली पोटेंशियल पे मैक्सिमाइज नहीं कर सका है. राइट, तो आई डू अंडरस्टैंड के देर इज़ इनफ, जितनी मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग ली कि अगर लेट्स से कंपैरेटिवली मंटो के पोटेंशियल कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग स्ट्रेंथ, अगर 2 मिलियन लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे 1.7-1.6 मिलियन लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे. आई रन दिस रिसर्च, इसकी 100% कोई मुझे वैलिडेशन का नहीं पता होगा, लेकिन आई रन दिस रिसर्च विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, कंसिडरिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम कितना कोई हाउ ऑफन आर दे ईटिंग आउट, कितना वो स्पेंड कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर कितना स्पेंड कर रहे हैं, ऑल दीज पर्टिकुलर places. तो इतना comparatively it's not a big difference. So there's a big market that still exists there. आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट. इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.